Hello and welcome to another episode of Mashable Pakistan Lab. Today we have the CEO of Karwan Crafts Foundation, Mr. Danish Jabbar Khan. Hello and welcome, sir. Ji, Assalamu alaikum, and thank you very much for inviting me. Thank you. Sir, we'll just dig right into our conversation, and which is ke I don't know how many people know कि आपका in addition to your being the CEO of this amazing organization, आपका बड़ा थोड़ा सा artistic background भी है. You have a degree in architecture from NCA, and then you ended up doing an MBA from LUMS. And I don't know how many people know this, but you are associated with two of the very founding boy bands of Pakistan, Call and EP का आपके यहाँ एक बहुत लिंक है. And I also got to know कि आपने इर्तिका का नाम जो है वो आपने आपकी creation है. So just talk about this, sort of a balance between this artistic side of you and then sort of a business corporate side of you. ये आपने स्टार्टर ही बड़ा जो है ना वो टारगेटेड किया है, बट यस, स्टार्टेड ऑफ एनसीए से आर्किटेक्चर किया. I think that has a lot to do with how the way I really think now. Undergrad degree मेरे ख्याल में बहुत एक ज़रूरी डिग्री होती है जिसमें आपका जहन नशोनुमा पा रहा होता है, आपका वर्ल्ड व्यू डिफाइन करने में. और आई थिंक एज एन इंस्टीट्यूशन एनसीए वो आपको माहौल प्रोवाइड करता है जिसमें आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकें और कुछ चीज़ों को एक मुख्तलिफ जावियों से देख सकें. आई एम श्योर बाकी इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, बट एक फनुल लतीफ़ा या फिर फाइन आर्ट्स या फिर एक आर्ट इन इटसेल्फ. सो इवन वो टाइम ऐसा था जिसमें जो है उन चीज़ों को और वो माहौल भी ऐसा था जिसमें बिल्कुल उन नैरेटिव्स को क्वेश्चन करने का भी मौका मिला कि व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज आर्किटेक्चर, is there a link, what is building is a verb and a noun. Language को, linguistics को भी थोड़ा सा how can it be static and what's the role of an architect. And during that time we were doing of theater, और theater भी in the sense कि वो काफी एक meditative kind of a थिएटर प्रैक्टिसेस होती थी जिसमें माइम उसका एक एंड प्रोडक्ट होती थी जिसको कहते तो माइम थे, लेकिन इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल थिएटर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्पेसेस. And we have never done a theater performance inside of an auditorium. It was always we could find a space and give meaning to it. So I think that was the idea of the architecture as well. And then broader scale में उसको देखते थे तो वही नजर आता था कि it's not the walls and the ceilings that give meaning to a built space. It's the event that you introduce and that changes the purpose of that. So that was the whole idea of and what are the factors that actually influence those events. Those could be politics, it could be economics, it could be many other. So I think and then उसमें medium मुख्तलिफ, क्योंकि एनसीए से थे तो वो जो मीडियम थे हमारे पास कोई इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस या फिर उस तरह की तो एक पर्सपेक्टिव नहीं था कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके देखें उन चीज़ों को. तो वो टूल्स वो यही थे, म्यूजिक, आर्ट, एक्सपेरिमेंटल ड्राइंग्स, रन टाइम कुछ चीज़ों को करने का. तो वो आई थिंक वो दैट वाज द पॉइंट. सो दैट वाज द वे टू जो एक जहन बना के इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं. तो वहां से ग्रेजुएट करने के बाद was at a loss कब करना क्या है इसके बाद. So I think that was the training that actually helped क्योंकि था कि of course एक coming from a humble background,
had to meet ends meet as well. So उस वक्त वही सोचा कि क्या किया जाए, and get on to मैंने मतलब NCA में मैथ्स का कोई इतना कोई मतलब वो आपने मैट्रिक ओ ए लेवल्स में पढ़ी होती है मैथमेटिक्स, उसके बाद then I thought to get on to my MBA. तो उसके बाद चला गया, क्योंकि एक इकोनॉमिक प्रेशर, और जब आप होते तो वो होता है कि यार आपने करना क्या है. सो आई वाज एट लॉस एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो फिर आई वेंट फॉर माय एमबीए एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ a totally different environment, which was diametrically opposite, I would say. Ethos was the same institutions में. So I'm very lucky to be have been part of two of the very defining institutes of Pakistan, NCA and LUMS. So वो वहाँ भी जो है एक्सपीरियंस के साथ, एक माइंडसेट के साथ आ रहे थे. सो वो बहुत ही, वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था वहाँ का. एंड आई थिंक द ethos was same about creativity, but the way to go about it was that sobat बहुत असर डालती है. The kind of teachers that we had there at NC and the kind of teachers that we were at LUMS, whatever was interesting combination. So I think वो एक इंसान वो उसमें इसका एक कोई इर्तिका होता जाता है. सो वो अपने जो है ना, हर चीज समझ में नहीं आ रही होती उस वक्त तक. सो बस लेकिन अल्लाह का करम होता है. मैं यही कहूंगा कि तो एक तौफीक दी कि चीजें जो हैं उनको करके ही आगे बढ़ा जाता है. और एनसीए का ये था कि उसने डर खत्म कर दिया था कि जो है ना, यू गो हेड, मोमेंट को कैसे आप सीज कर सकते हो. सो आई थिंक that's very entrepreneurial spirit that has to be there. So वो उसके बाद इधर लम्स चले गए, बी कर लिया. I was fortunate to be under tutelage of few of the very best minds who I still consider my mentors. So वो के साथ मौका मिला. फिर as a young graduate from लम्स, हर एक की ख्वाहिश होती है किसी जगह नौकरी करे, अच्छी जगह मल्टीनेशनल में मिल जाए तो वाह वाह क्या बात है. So फिर work with Nestle for some time. I was fortunate enough to get into उसके बाद फिर एक और जगह मैक्रो में कुछ अरसे काम किया. एंड देन यू सी वो एक होता है ना कि when you एक हार्ट और माइंड का एक बड़ा एक चपकलिश चल रही होती है हर वक्त ही. सो वो और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके साथ साथ रहते हैं. सो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट स्टेड विद मी. और and I was lucky actually to get onto this place that is Karwan, in which, और वो कहते हैं ना कि आप words and then कारवान क्या है, अल्लाह ताला का करम है कि उसमें. और मोटी चीज वो फातिमा यही कि it's very easy to connect the dots के ये हुआ था तो ये हुआ था तो ये हुआ था. But what I've learned over a period of time कि ये it's a grand scheme that is in place, and just leave everything. अल्लाह ताला का एक है, वो पता नहीं पीछे जो काम हुआ था वो शायद इसीलिए हुआ था कि यार ये चीज करनी थी. So that is how I entered into this space. It's very creative. It has a business element to it and has had this creative element to it. How to actually it's crafting livelihoods. So livelihood has that MBA part to it, and then MCA part to it. So it's a rollout in that sense. Yeah. So I really wanted to ask if you ever practiced architecture. लेकिन आपने I think जो अभी कारवान के बारे में बताया, I think that sums up कि how both your sort of degrees gel in. But did you ever practice? आपने कभी architecture actually में practice किए? Like as a profession, even छोटे से level पे. जी. I'll share that with you. I never believed in buildings. कि कोई built environment बनाई जाए. So it was very I had never practiced. I never have constructed it. The way I looked at architecture was to design systems, influence जैसे architect of change. जो अब मैं कारवान में कर रहा हूँ, that is architecture.
to have an influence, design a system, design a program, implement it, have the impact. So that is, I think, that's very. If you ask me what's architecture for me, what I'm doing at Carvaan is architecture. So I was never a building Structural. construction architect. Yeah. So that's not that building बनाई नहीं कभी. So let's talk about Carvaan. I really want to sort of dig deep into how you ended up naming Irtiqa, लेकिन वो हम end पे cover करेंगे. First, we'll talk about Carvaan. Carvaan का बताएं कि obviously we know, I think everybody, because the organization has been doing such a great job. I think we also ended up before COVID covering one of your events as well. लेकिन उस पे हाउ डिड यू ले द फाउंडेशन, हाउ डिड यू डिसाइड कि ये एक एलिमेंट है? बिकॉज टॉकिंग, अगर हम थोड़ा सा बात करें, देर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस एट सब एट कुछ स्मॉल स्केल पे, कुछ बड़े स्केल पे, which are dealing with trying to get these हमारे जो traditional crafts है उनको sort of giving some sort of business touch to it. But Carvaan ka thoda sa model is, I think, very different because you get to meet the actual people, making those products instead of knowing कि अच्छा ये फलाने इलाके का एक product है, but somebody is exhibiting it, उन्होंने खरीदा जाके, but you only get to, in other places, get to see the middle person who is actually selling the product. So how did you ended up, designing the specific model where you're, if from my perspective, you're basically helping the people who are actually making those products, उनको एक business sense दी जा रही है. So how did that come about? अच्छा, दिस इज वेरी एक इंटरेस्टिंग सी एक फाइंडिंग है. वो वो कारवान के अंदर जो है, आई वुड से उसके वो ईथॉस में जो है ना वो शामिल है. सो उसमें बस ये सब चीज जो है ना वो ये कि एक जो टॉप डाउन या फिर अस एंड देम वाला एक एस्पेक्ट होता है ना कि हम क्या कर सकते हैं, वो हम एम्पावरमेंट देंगे उनको, वो एम्पावर हो जाएंगी कम्युनिटीज या फिर जो खवातीन हैं. सो ये भी बड़ा एक मिसनॉमर है एक तरह से. और यही हमारी जो when you work with the communities, you and in a very decentralized way, it's not us and them, it's like you are going there to learn, not to आप उनको कुछ देने नहीं चाह रहे हो या उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे हो. आप इक्वल ग्राउंड पे जब उनसे चीजों को समझने के लिए एज अ तालिब इल्म जा रहे होते हो उस जगहों पे. सो उसमें बहुत चीजें जो है ना, और देन कारवान इज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. से वी नेवर से दैट वी नो समथिंग, वी ऑलवेज आर फाइंडिंग आउट थिंग्स. उसमें सबसे जरूरी जो चीज है ना वो ये कि वो ऑलरेडी दे आर वेरी गुड फंड मैनेजर्स. If we say, if we think they're very empowered, it is only that their stories are not out there. The kind of resilience that they have, the kind of fund management mechanisms that they have, उसमें भी वैल्यू चेन है ना. कुछ होमबाउंड हैं, फिर कुछ उन्हीं कम्युनिटीज में से कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि फिर मार्केट के साथ कनेक्टेड हैं. You just imagine the kind of the negotiations that they do with their customers, the negotiations that they do with their home-based workers, and these micro entrepreneurs that we work with now are from the community. They are not someone else in the value chain. So होता वो यही है कि वो उन्हीं में से कुछ जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर जिसको हम कहते हैं, वो एक जमाने में आर्टिसन ही होगी वो, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम शी स्टार्टेड कनेक्टिंग टू द मार्केट, वहां से ऑर्डर लेके आके उनसे करवा रही हैं अपने होम में. उनसे शी इज मैनेजिंग बिजनेस, and the kind of skills that she has is cannot imagine. Or also the rural of the rural values, I would say, values of helping, sharing, caring, to be open to ideas. So wo and or skilling up, learning new skills in terms of whether they are soft skills, whether they are new trends about. So
वो उनको सामने लेके नहीं आए हुए चीजें को, ठीक है, थोड़ी सी होनिंग रिक्वायर्ड होती है. एवरीबडी वांट्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज, एवरी बिजनेस वांट्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज, उससे बढ़ना है, दे वांट इट एज वेल. क्योंकि जो यहाँ हम बैठे होते हैं, हम यहाँ ज्यादा होती है, सो वो वी काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग दोनों चीजों की होती है ना, तो यू कैन एक्ट एज अ बेटर ब्रिज. एंड दैट इज व्हाट Karwan is doing. और इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे, जिसमें इट इज नॉट के कारवान कर रहा है, we tend to we have it's a very conscious way to do things, कि उनको सामने लेके आना है. वो कर रही हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज उनकी वो इनकरेजमेंट जो है ना, वो बड़ी पावर होती है. वो फिर चीजों को वो रोल, अच्छा, वो जो है ना, वो खवातीन माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो सेटअप में है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर नहीं, उनके पास अब तो दे हैव शिफ्टेड टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, बहुत ज्यादा उनमें से जो हैं खवातीन. उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो दे आर नॉट ओनली एन इकोनॉमिक लिंक टू देयर कम्युनिटीज, दे आर रोल मॉडल्स, they are somebody, they're mentors, they are somebody that these community girls, they look up to, they want to become like them. So you see, there's more to just an economic link. They are from the community people. It's a very interesting mix that they have. उनका uptake भी to new technologies, to new ideas, हमारे सारे काम का, जिसमें ना सिर्फ जो है वो एक क्राफ्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि वी आर अ लाइवलीहुड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से. इट इज नॉट ओनली द क्राफ्ट सेक्टर का ये कि इट्स वेरी इनेट, बड़ा वो हर एक उसमें इन्वॉल्व होता है, बट there's a we believe in a very and rightly so, it's not case वो women है, it's an economic factor. If you look from थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो like it's women is at the heart of development. We see development through women. उनकी एक और जो सोशल चेंज होती है, वो इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज को वो ट्रिगर करती है. सो दिस इज द मॉडल दैट वी वर्क ऑन, एंड इट्स वेरी डिमांड ड्रिवन. इट इज नॉट के हम किसी को कहें कि यार उसको स्किल दे दिया है, या स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम कुछ किया है जिसमें कर दिया, उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो खुद ब खुद जो है वो एंटरप्रेन्योर बन जाए. ऐसा नहीं है वो. इट्स लाइक asking a lawyer to operate on an open heart surgery. Market and sales is a totally different game. So and that is जो जिसको मिडिल पर्सन कहते हैं, वो हमारा जो मिडिल पर्सन है वो कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योर है. वो वैल्यू चेन में जिसके साथ भी कनेक्टेड हो, इट्स वर्केबल as far as she's getting work, और हमने उसको बिजनेसेस के साथ कनेक्ट करवाना है और उसको काबिल बनाने के अपने वो क्वालिटी मेजर्स, अपने जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट, जो भी एक वो क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा जो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है, वो डेवलप कराने के लिए वो उनके साथ उस चीज पे बात कर रहे होते हैं. और ये हमारा मॉडल है चलने का. जी, टॉकिंग अबाउट, आपने थोड़ा सा वो भी राइट ऑन, आपने एक वो स्टीरियोटाइप पॉइंट भी हाईलाइट किया कि बिकॉज अर्बन सेक्टर में बैठ के वी थिंक वी नो बेस्ट, एंड हम रूरल एरियाज में जाके हम सिखाएंगे उन्हें, बट विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, एंड नॉट जस्ट इन दिस सेक्शन. और भी साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए जब जाते हैं तो पता चलता है कि दे माइट नॉट बी यूजिंग वो टर्मिनोलॉजी जो हमें, जिससे हम फेमिलियर हैं, बट दे know those things because they're at the front line. And you also mentioned about how women are at the center of development and in the center of economic growth. And there have been studies which already say if you empower or you educate a woman, that means you are educating a community, because studies show that when a woman has more money, she is spending it on the collective good of the household and the community, instead of just spending it on herself. So, लेकिन इसमें एक वही वाली, I'll just put out another वो एक stereotypical question जो होता है कि जब आप इस तरह की communities में जाते हैं, mostly it's perceived कि given it's a patriarchal society, even in the urban centers, कि men are not so comfortable in having their women of their household have this economic independence. So what has been your experience? I'm pretty sure
there are going to be ways, because उन लोगों को भी नहीं पता कि क्या opportunities हो सकती हैं. So what has been your experience on this front? You're very right, Fatma. जो एक patriarchal mindset, I would not say patriarchal, actually patriarchal mindset for the sake of discussion उसकी बात कर लें. But the community barriers are mobilizing those ladies to get onto a training program is the most challenging part of the work. And the success stories that we have, they become our ambassadors who have gone through the similar kind of barriers, and they've managed to actually be better, and the behavioral change that has brought in the lives of the household, including men. ये आई थिंक बहुत ज्यादा जो है ना वो ये वुमेन, हमें खुद भी जो है ना चीजों को जरा मुख्तलिफ तरीके से देखने की जरूरत भी है. वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट वुमेन, it's a narrative में आप you have to have men and boys as part of that narrative. आपने जो जेंडर रोल्स को आपने जरा शेकअप करना है, जरा समझने की कोशिश करनी है, वो भी आपने वो मतलब आपने इमोशंस ही ले लिए हो. या अर्बन एरिया में आप देखते हैं मतलब द काइंड ऑफ linguistics that we use for stereotyping men and women. क्या औरतों की तरह रो रहे हो, मतलब अब भाई मेरा भी दिल चाहता है इमोशन शो करने का, मैं क्यों ना लड़का क्यों ना रोए, या फिर so it's not, it's about human, it's only the biological difference, that's it, and rest सब चीजें जो हैं वो कर सकते हैं. यहाँ अच्छा वहां जो है ना वहां वो ये कि the barrier is not only about the men, it's about the elder females as well. So it's very difficult. It's just like कि कोई अपना जो जिस practice में होता है ना उसको negate करना बहुत मुश्किल होता है. And when you have influences in the community, others कि यार ये अपनी बेटी को कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, so of course इस तरह के बहुत जो है ना वो challenges का सामना करना पड़ता है. उसके लिए फिर जो है वो हमारे community awareness sessions होते हैं, जिसमें जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है. उसके बाद जो भी हम जो काम कर रही होती है, जैसे कोई जब आ जाते हैं तो उनके साथ उनके पहले फैमिली मेंबर्स को भी उनके साथ भी एक सेशन उनको इन्वॉल्व भी किया जाता है कि जो है ना कि, और वो उस जहां हम कोशिश करते हैं कि जो चैलेंजेस उनके ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है मोबिलिटी का. तो मोबिलिटी के लिए जो है ना वो व्हाट वी डू कि बिल्कुल जिस विलेज को हम नीड असेसमेंट करके सिलेक्ट करते हैं, फिर वो उनके बिल्कुल करीब खोलते हैं और उन जगहों पे खोलते हैं जैसे किसी के ना किसी कि वहां के जो एक रिस्पेक्टेबल खानदान समझा जाते हैं, वहां जो है ना इन द कम्युनिटी, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूडल लॉर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी कम्युनिटी लोकल लेवल पे जो है कि वो उनके घरों में ही हम वो सेंटर खोलते हैं, ताकि वो भी एक ना काइंड ऑफ के यार अच्छा उनके घर जाना है, अच्छा फिर ठीक है. सो 2-4 के जा रहे हैं तो देखा देखी वो एक वो चीज बन जाती है कि एक ना एक वेव बन जाती है इस चीज में. सो और जैसे जब वो फिर वो जो होते हैं ड्राइंग्स जो स्किल्स सिखाए होते हैं, फिर वो उनको हम वो साथ भेजते भी हैं कि ये देखें ये सीख रहे हैं आप. देयर इज अ लॉट ऑफ, देखिए इसमें ना बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं. अगर आप थोड़ा और पीछे जाए ना तो उसमें वो ये था कि देयर इज अ ड्रॉप आउट. अगर स्कूलिंग में भी लड़कियों को डालते हैं ना तो वो आप यू सी दैट आफ्टर 14 ड्रॉप आउट स्टार्ट हो जाता है. अब 14 to 18 वो कुछ कर भी नहीं रहे होते नहीं, और फिर देन these skills are somehow also considered of having a social benefit to them. अभी भी जो है वो जहन में होता है कि यार अगर कोई प्रॉब्लम पड़े तो एटलीस्ट अपने लिए कुछ कर सके लड़की. ये एक बैक ऑफ द माइंड, ये एक सेटअप होता है कि यार अपना किसी फाइनेंशियल प्रेशर में आए तो अपने लिए कुछ कर सके, बेशक सिलाई कढ़ाई कर सके, तो ये स्किल्स आ जाए तो भी अपने लिए बेहतर कर सके. सो वो बहुत ज्यादा जो है 18 एंड अबव 18 to 24 की बहुत बड़ी एक सेगमेंट है जो फिर हमारे पास इसमें आता है. सो यस द बैरियर्स आर देयर, बट ऑफ कोर्स जब आप कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस is the way to it. You do a lot of communication and confidence building measures with the community. So I think that's the way to go about it. So talking about communication, obviously हमने देखा कि I'm assuming and obviously जिस तरह का
कह रहे हो कि ट्रेनिंग सेशंस होते हैं सारा कुछ, and you go to those communities and you obviously you are there in person. But now with the pandemic, we सारे जो हैं जैसे virtually communication कर सक रहे हैं तो कर सक रहे हैं, वरना in person it's a health risk. And we saw when the pandemic started, जब यहाँ पे like everywhere else in the world हमें भी कहा गया कि जी virtual learning होगी, work from home वगैरह होगा. But then we saw the resource divide कि पाकिस्तान में एक limited amount of internet ही है, where then students in the outskirts were like protest हो रहे थे सारा कि जी हम कैसे virtual learning करें when we don't have access to internet. So how did you guys manage this? Because tech is a very key component of doing anything now. And it was so even before the pandemic, like in the pandemic has now shown that we need to have a tech education is going to be the basic skill की तरह की चीज होगी. So how did you guys manage to deal with the situation? I think हमारा जो फातिमा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. और इसको आपकी जो फाउंडेशन जिन पिलर्स पे खड़ी होती है ना, वही उसका जरिया बना के हाउ टू रिस्पॉन्ड टू these types. So कारवान की फाउंडेशन जो है वो बहुत ही वो I would say that in terms of transparency, in terms of project management, जो good corporate values हैं, not about advertising but about being transparent, about being good project management, corporate governance, आपका जो है speed, then element of awareness. ये बड़े एक pillars of and also monitoring and evaluation. ये बड़े pillars होते हैं आपकी organization के of how to actually respond to something and also to how to go about it. So उसमें भी जो है ना, ये जो हमारी जैसे अब वो क्या अंडरस्टैंडिंग वो यही है और नॉलेज वो यही है कि जो हमारी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो दे आर नॉट ओनली एन इकोनॉमिक लिंक. We consider them as a social link, as a mentor, as a medium, a kind of a leadership role that they have in the community. और बहुत ज्यादा हमने इस मौके पे यही 2-3 तरीकों से इस चीज को एड्रेस किया. एक तो जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत हमने सबने जो है ना, वी मेड श्योर दैट एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू, जितने भी हमारे नेटवर्क में हैं खवातीन, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में जाया जाए. और देन उनका जो रोल, जो हम जिस चीज के प्रोपोनेंट हैं, वो इट केम टू सरफेस लाइक एनीथिंग. मतलब दे एक्चुअली कम्युनिकेटेड. मतलब अब किसको पता एसओपी क्या है, किसको पता कि यार ये जिसको हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है. आप जितना भी कम्युनिकेट कर लें टीवी पे, बट somebody that you look up to would actually tell you कि यार ये चीज ऐसे ऐसे है, then it would make sense to them. So that is the role that they played. They actually अपने व्हाट्सएप पे भी, अपने जो है जाके भी इवन कि यार ये फासला रखना है, एंड देन वेरी ऑथेंटिक उनकी जो वो एक्टिविटीज हो रही हैं वो फिर भी शेयर्ड ऑन अ सोशल मीडिया, बी अ पार्ट टुगेदर के कैंपेन के थ्रू, बी अ पार्ट टुगेदर. सो अगर, और उसमें ये किया कि जो अर्बन एरिया के यूथ है उनको भी कनेक्ट किया कि यू एक्सचेंज लेटर्स, उनसे इंस्पायर होके आप भी कुछ बनाएं और यू शेयर विद ईच अदर. सो एक तो ये काम हमने किया कि आप जो है ना वो वहां से बिल्कुल ऑथेंटिक वो जो काम कर रही हैं, क्योंकि जो चीजें वो बता, जिस चीज से कम्युनिकेट करेंगी ना, वो उस इनकलकेट होगा. वरना तो एसओपी का मतलब ही नहीं पता. वी डिड अ रिसर्च ऑन दैट कि यार एसओपी को फॉलो करना है. जब एसओपी का आपको यू डोंट नो व्हाट एसओपी इज, और जब एक्सप्लेन करने पे आते हैं तो वो सो आई थिंक कम्युनिकेशन बड़ा इसमें एक पार्ट प्ले किया. दूसरा वो ये किया कि जो एक चीज थी कि हम तो काम करें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे. सो वी रेज लॉट ऑफ फंड रेजिंग की, क्योंकि वी गॉट अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑफ गिविंग टू देम थ्रू आउटरीच. हमारी बहुत दूर तक है. वो ऐसे एरियाज में भी है फातिमा जहां मतलब जो गूगल मैप पे भी नहीं है.
We recommended on a platform with UN Women के थ्रू जो है ना गवर्नमेंट को भी हम एडवाइस करते रहे कि क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है ड्यूरिंग दीज टाइम्स। और बहुत ज़्यादा फंड रेज भी किया, लोगों ने बहुत इसमें मदद की, और वी न्यू कि हमने उनको कैश ट्रांसफर्स करने हैं। सो वी मेड श्योर कि हम और पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी विद द डोनर्स दैट वी हैव, सबको फिर उनके साथ बात की कि यार जो है वो फंड रेज किया जाए। और माशाल्लाह यूके से भी हमारे पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट एज वेल, सो दे हेल्प अस लॉट इन फंड रेजिंग देयर। उसके बाद फिर जो है वो हमने वहाँ वो ट्रांसपेरेंट मेथड है हमारा थ्रू इजी पैसा। अब वो और वो इसके थ्रू वो इतना वहां तक इतना हो गया कि यू हैव टू हैव आईडी कार्ड, यू हैव टू हैव थंब स्कैन, एंड देन ऑटोमेटेड रिपोर्ट कम्स। सो इतने लार्ज स्केल में हम वी हैड the practice of doing this, so we were very comfortable in that. The third aspect was कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रुक गई थी ना, वो बहुत बड़ी थी कि वैल्यू चेन डिस्टर्ब हो गई थी। मार्केट भी बिल्कुल ऑफ हो गई है, जो उनके घर वाले भी काम करने वाले हैं वो भी जो है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई वो है, वो भी सारे खत्म हो गए हैं, कोई तरखान है या ये है वो है। सो वो वेरी, और वो खवातीन हैं फातिमा, वुड नेवर वो दे वर वेरी खुददार, आई वुड से दे वर नेवर 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 आप हाथ नहीं फैलाएंगे। सो वी न्यू इट। और वो पहले तो होती थी कन्वेंशनल एग्जीबिशन हो जाती थी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज्यादा हम लोगों ने भी मतलब हर क्वार्टर ही हम करते थे एम्पोरियम मॉल में। सो उनको तो वो उनका बहुत बेहतर हो गया था कस्टमर इंटरेक्शन और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और बहुत अब वो सारा जो है ना वो अब वो भी डिस्टर्ब हो गया, मार्केट के साथ जो कनेक्टिविटी थी वो भी। सो हमारा एक पहले से चीज चल रही थी कि इनको डिजिटल जो है ना, हाउ कैन टेक्नोलॉजी भी गिव बी प्रोवाइडेड टू देम इन अ वे दैट बिकम्स इजी फॉर देम, जिसका जो है ना अपटेक बढ़ सके, वो उनके उनसे उनसे वो बागी ना हो जाए। सो टेक्नोलॉजी को भी वो अभी समझ आती है कि टेक्नोलॉजी इज पनिशिया फॉर एवरीथिंग। वो ये भी एक बना हुआ है ना कि बट टेक्नोलॉजी हो ये वो डिजिटाइजेशन ये वो, बट आवर एक्सपीरियंस इट्स अ वेरी पेशेंस ओरिएंटेड वर्क। When you're working with the communities now, it's a very patience oriented work. So आहिस्ता वो you have to make it Google for them, बिल्कुल सिंपल इस तरह करके। सो वो एंड ऑल्सो फिर उसके उसी दौरान जो है ना वी मेड इट अ पॉइंट कि यार अब चलो एक ऑनलाइन एग्जीबिशन का सिलसिला करें, जिसमें फिर हमने और वो भी एक डिसेंट्रलाइज वे में, जिसमें जो है वो एंड वी न्यू के दे आर सो इट्स नॉट के वो वही वाली बात है कि जो हम बताना भी चाहते थे, बताना चाहते भी हैं और हमारा एक करते भी रहते हैं कि दे देमसेल्व्स, अब आप देखें ना, दे देमसेल्व्स वर देयर ऑन द फेसबुक लाइव सेशंस, अपने अपने हमने डायरेक्टरी अपनी बनाई, वो अपने वही प्रोडक्ट्स शेयर भी कर रही हैं। दे ट्रांसफॉर्म्ड देयर लिविंग स्पेस इनटू एन एग्जीबिशन एरिया, एंड जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, दे कुड शो कि यार ये पीस ऐसा है, ये पीस इतने का है, ये चीज इतने का है। तो इट्स आप बंदा अगर हमारे सेशन को रिकॉर्डेड भी हैं, so you see what you're getting is a very authentic perspective from that lady who's an entrepreneur and who is not showing you stuff, her product, and you're not asking to buy as a pity कि आप उससे खरीदें, because it has value for you। आप नहीं खरीदेंगे, कोई और खरीद लेगा। So and where she's coming from, so उसका एक source का भी जो है वो भी एक element cover हो जाता है। So there's a lot of stuff that, and उसका इतना जबरदस्त impact हुआ ना, क्योंकि initially we did it with 10 entrepreneurs, women entrepreneurs, और हमने फिर कुछ जो है ना, एक ये हमारा एक और एलिमेंट भी रहता है फातिमा की, टू हैव जो अर्बन यूथ है ना, उसकी की भी अर्बन रूरल कनेक्टिविटी भी एक एलिमेंट रहता है। सो वी हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उसको भी कनेक्ट, उनको मॉडरेशन सिखाई, मतलब उनकी दोस्ती करवाई एक तरीके से, सो दैट दे कुड कोलैबोरेट कि अच्छा ये है वो है। सो वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ मिक्स दैट केम आउट। सो हमारे भी पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व थी, उनको भी जो है फिर मतलब दिस इज हाउ
इसका इतना जबरदस्त इम्पैक्ट आया ना, इवन जो आप स्केल की बात आपने एक आगे करेंगे, जो वो ना सिर्फ, क्योंकि वो सेलिंग जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो है ना स्केल और सस्टेनेबिलिटी के एलिमेंट है वो दैट इज थ्रू टेक्नोलॉजी, कि वो जो है वो इस लेवल पे आ जाए कि उनका पोर्टफोलियो, उनके इंस्टाग्राम पे उनके फेसबुक पेजेस बनाए, उनके इंस्टाग्राम बनाए, उनको बताया कि कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको बताया गया कम्युनिकेट इस पे कैसे करना है। सो ये सारी चीजें जो है ना, अच्छा अब वो 10 खवातीन के साथ किया, 11 खवातीन के साथ, इतनी उसकी अप उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी की अपटेक भी और रिस्पॉन्स ऐसा आया। उसके बाद हम पे, क्योंकि हमारे तो नेटवर्क में बेतहाशा खवातीन, इतना प्रेशर कि जी हमें क्यों नहीं रखा आपने, हमें भी लेके आए इस पे, ये भी। So the idea, but then we did another one in first we did in July and then we had to do it again in October. So और वो and then we scaled it up. हमने वहाँ बलूचिस्तान से भी हमारे पास माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स थी, हमारे पास जो है वो कैलाशा में हमने काम किया हुआ है, वहाँ से भी थी, सिंध से भी थी। सो इसी एक नेशनल लेवल पे हमने जो है ना उनको, सो दिस इज, और अपटेक ना टेक्नोलॉजी की बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड टाइम्स जो है ना, वो अपटेक बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी की रियलाइजेशन बढ़ गई है कि यार ये ना पड़ गई है तो क्या करना है। और उसमें जो है इन द सेकंड एग्जीबिशन, सॉरी इन द फर्स्ट एग्जीबिशन, जितना यूएस में से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लाहौर में जितनी सेल हुई ऑनलाइन, यूएस में भी उतनी सी, मतलब इक्विवेलेंट, इतना ज्यादा, मतलब आपको इन 3 दिन, उन 3 दिनों में सेल्स में, बाकी उसके बाद जो कनेक्टिविटी बनती है उनकी, सो वो एक झिझक खुल जाती है उन चीजों पे। सो आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड टू इट जी। नहीं, this is very interesting and I think एक जो aspect आपने कहा वो I think I don't know if that's something you guys deliberately focus on or not, but ये जो youth, urban youth का rural हमारे area से divide है, that can have and long-term implications and issues of its own, because Pakistan is more than just Lahore, Pakistan, Lahore, Karachi, and Islamabad. So yeah, that's a very interesting aspect. I was going to talk about the products because आपने but वो आपने खुद ही मेरे question का answer कर दिया कि market से बंद थी, तो how did you manage that? So before we go into social media questions, my on कारवान के aspect से मेरा जो एक last question होगा would be कि um, every organization has sort of goals, long-term goals, and that they want to achieve. Obviously, with the pandemic, long-term goals, rakhna, unko manage karna, everybody is shaky on those grounds. But do you guys at Carvan have a goal? For example, if you thought कि जी हमने ये women entrepreneurs का एक scale up करना है at whatever XYZ target you had, but with everything that we have seen happening in 2020, do you have like another key goal? Okay, this is what you want to achieve in the next, 5-10 years on this from this platform. मैं समझता हूँ कि Karwan over a period of time from a project-based organization has evolved into a program-based organization. और जो अभी ना सिर्फ अभी बहुत काम करने वाला है, जो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में ओवरऑल आई थिंक एक डिजिटल मार्केट लिंकेजेस का जो मॉडल है, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी वुड आई थिंक दैट समथिंग दैट वी शुड बी टेकिंग फॉरवर्ड। और इसमें जिस लेंस से देखनी है इस चीज को, दैट इज अबाउट it's about women is part of the development narrative, but also there's an element of cultural heritage to it that we need to conserve or preserve or to have demand for it. आमतौर पे ये चीजें होती हैं जो टूरिज्म ड्रिवन होती हैं, टूरिस्ट आता है चीजों को करता है, सो वो बेच देते हैं। आप यू टॉक अबाउट टर्की, ताइवान, इवन इंडिया फॉर दैट इंस्टेंस, हमारे पास वो नहीं है चीज, सो वी हैव टू बी द अदर वे अराउंड, वी हैव टू टेक इट टू देम। सो आई थिंक ये स्केल अप जो है
ये एक टेक्नोलॉजी के थ्रू समझता हूँ एक किया जाए, और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है जो कारवान प्ले कर रहा है, और इसी को स्केल अप समझ आती है करते हुए, and also to influence on policy and the advocacy front. Policy in the front के हमारे पास ना डाटा नहीं है. When we say about health या education का तो मिल जाता है हमें डाटा, but when it comes to the livelihoods, when it comes to ये models, skill development से related. So we've done some social experiments with Center for Economic Research Pakistan. We're doing some experiments with economists as well. So some work on the policy front, and also the advocacy of changing the very way to look at things. For instance, when we say vocational training, we have a very myopic way of understanding of what vocational skills देनी है. We have to turn it around. और हमने अल्फाज मुख्तलिफ इसके लिए तलाश करने हैं. For instance, and that is something that is very exciting about it. We say it's not skill development. It's not skill development. या फिर it's your skill development has a notion. Usually when you call skill development, you have a perspective कि यार ये skill development. We say talent honing. Usually the talent honing is the talent is already there. We're just honing it. Yeah, you just know. It's a very different way of looking at it. So yep. ये चीजों को मैं समझता हूँ कि अभी बहुत काम है इस चीज पे करने वाला. रूरल कनेक्टिविटी की जहां तक बात है ना, वो भी एक बहुत मोटी चीज है. वो ये चीज है कि हमारा ना अर्बन एरिया में बड़ा वो भरम रखने का है कि कोई कर लेगा करके. However, experience that it's easier to bring the rural women over here than to have the urban people going back there. So that's also. So and what we believe that it's the same life that breeds in all of us. It's हम कहाँ पैदा हो गए, क्या कोई इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना वो डिफाइन नहीं करता हमारी हैप्पीनेस को, हमारे स्टेटस को. पीपल आर हैप्पी. यहाँ तो हमने सो मेनी ये वो बड़ा जो शायद एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए. they would ask you, I mean the values that rural values have, they would ask very simple questions to you, and they're very comfortable asking questions. एजुकेशन का तो पर्पस ही ये होना चाहिए कि आपको सवाल करना सिखाए. नहीं, हमारे यहाँ तो it's the other way around. आपके साथ सवाल करेंगे. You see, when you get these things, तो आपको बताते हैं कि यार ये चीज ऐसे ऐसे है. You take these kids there ताकि you interact with them. So टाइम जो है ना वो अगर उस तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो सकता तो इस तरीके से इंटरेक्शन करवाया जाए फिर उनका. So ये हम लोग कर रहे हैं जी. That's very interesting. I think आपने वो एक जनरल एक मिसनॉमर है अराउंड वही वाली बात कि वोकेशनल ट्रेनिंग का जो टर्म है कि जी स्किल देनी है हमने जाके, that touches upon it. So we'll just move on to some of the social media questions that we got when we put out you'll be coming on as a guest. So one person has asked what's the application process if somebody wants to इन्होंने specify नहीं किया if they're asking about the startup वाली चीज कि if somebody wants to volunteer, but if you can just give a general where can somebody get in touch if they want to apply. आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके हमारे आप you just message us what's your interest, and somebody from the team will get back to you. There's so many avenues. Many avenues for a volunteer program जिसके साथ वो हम आइडिया यही है कि कनेक्टिविटी करते हैं with the communities. So वो आप you can connect with us on that. Another question जो वही it sort of touches upon what we discussed in the start about you ended up doing an MBA to look for a corporate job. Somebody said that is opting for a career in social enterprise something that's economically sustainable? I think one thing is very important in this space now. You do good. कोशिश करेंगे जो आपको शौक है वो करें उस चीज में. You land up doing things इतना ज्यादा शायद जो है ना वो प्लानिंग और वो जो है ना वो काम नहीं आती.
You just be have a open heart to accept things and see things के क्या चीज जरूरी है करना. सो उसी तरह से चीजों को करें. एज फार एज के यार मैं इस, हाँ आप इस जगह सस्टेनेबल होंगे नहीं होंगे, ये सस्टेनेबिलिटी भी एक बड़ा जो है ना वो एक उसकी भी अंडरस्टैंडिंग एक और जरूरत है उसको भी दोबारा से समझने की. व्हाट actually does it mean? Don't shy off from risks, don't shy off from experimenting. You've got just one life. Do what you love. यही मैं कह सकता हूँ. and everybody would want कि यार मैं कहीं stable हो जाऊं. So I think uh, what I've come to know that as a person of faith, मैं ये बाकी जगह भी बहुत दफा बात नहीं कर सकता कि I always believed कि do your best and leave the rest. And now when I look back, and I have come to know that you leave the rest and do your best. So you have to just have faith in what you want, and then have people like आपके पास इतने ज्यादा रोल मॉडल है. आपके पास ईदी साहब है, when you look है आपके पास इतने बड़े बड़े आपके पास रोल मॉडल who were never like us के हम तो अपने आप को बताते हैं ना हम ये करें वो करें वो करें. जितना हम पीछे रह सके, कारवान का भी है तो जितना पीछे रह सके वो ये लोग सामने आए. हमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए. सो जो हम काम करें वो पे दिल उसमें होना चाहिए. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. सो वो चीजें रास्ते मिल जाते हैं फिर. So somebody asked, do you guys plan to expand the organization nationwide? But as you said, you have like worked in Balochistan and you have like Kalash, the area mein. So I'm not sure what they actually mean by like you expanding nationwide, but I would sort of interpret this question in the sense that you guys, I think the headquarters is considered to be Lahore or Punjab or Karwan. So is it कि यहीं पे आपका जो office space है वो यहीं पे रहती है and then you just work project wise elsewhere कि there are some spaces जो nationwide भी people can approach you? Yes, nationwide people can approach us. It's technology के through. तो मैंने कहा ना कि already from the remotest villages of Balochistan and Sindh and Kalasha is like very far off. So वो वहाँ से चीजें होनी. So it's inshallah in coming time we'll be having entrepreneurs from Bangladesh, from Taiwan, from Turkey as well. So इसमें आप borderless. True. So last social media question is that what do you have any specific parameters or conditions as to what sort of product that can or product a startup can offer that can join Caravan organization? कोई handicraft ही होना चाहिए कि is it an open नहीं, it's an open model. Female entrepreneur, we very female focused. So female entrepreneur, any particularly from the ज़्यादा हमारा होता है कि रूरल एरियाज में हो, बट पेरी अर्बन एरियाज में भी जो हैं वो एंड वी ओपन तमाम प्रोडक्ट्स में जो हैं इट्स एंटरप्रेन्योरशिप. So it's not about product, it's about the even services. Yeah. They are the services, the tailoring services that we provide, and they are part of our network. So last question मेरा इर्तिका का थोड़ा because I think all of the 90s kids हमारे लिए वो एक music एक association है. I still have my वो tape I think recorded वो मेरे पे. So was there any specific thought process naming that? What inspired that specific name? आपने बीच में एक sentence में use किया था and that sort of gave it a window into it, but if you want to add on to something. ये आई थिंक बस वो एक टाइम था जिसमें जरा लिखने का शौक था. वो सोच तो अभी भी रहती है. आई थिंक इट रिमेन्स वेरी आपका हिस्सा रहता है एक सोच का भी. और बस वो इसमें कुछ मैं यही देखता हूँ कि जो खुल के चीजें बयान करने का एक तरीका होता है. वो लिखा है, वो लिखने का शौक था, लिखते रहते थे. बाकी भी जो आई थिंक ये जरा ज्यादा सामने आ गई.
उसको वो जो है म्यूजिशियंस ने अपने में ट्रांसफॉर्म भी बहुत अच्छा किया उन चीजों पे। Yeah. सो वो बस यही था, लेकिन बात मोटी वो यही है कि आपको ना वो बस क्या कहा जाए, वो आ जाता है, कर लिख लेते हैं फिर इस तरह का ये कुछ नो स्पेसिफिक इसमें नहीं है चीज, लेकिन बात यही है कि बस जो समझ आती है वो लेकिन मोड ऑफ एक्सप्रेशन आप उसको बड़ा वो हम्बली कर रहे हैं, बट आई थिंक जो फैंस हैं उस म्यूजिक जॉनरा के एंड उस टाइम पीरियड के, वो इट मींस अ लॉट टू देम, सो that will always have an impact and association. Thank you, sir, for your time and the work you are doing. It's pretty amazing, and we would always like to have you back. Support any sort of work that Carvaan is doing, and we would actually जिस तरह आपने कहा कि stories जो हैं वो, there are so many stories that need to be told, and we would always like to have give you a helping hand in that. If you have any entrepreneurs who would be interested enough in sharing their experience, we would like to have them on the podcast anytime. really, thank you very much, Fatma, for having me on your show. और जो मैशेबल काम कर रहा है इस वक्त टू गिविंग by giving vent to these ideas, and I think वो भी commendable है, the role that you and your team has taken up, and in the इनकी स्टोरीज जो हैं, भी आपने भी बहुत इसमें पार्ट प्ले किया है इनको सामने लेके आने में. वी हैव अ वेरी पैशनेट टीम लाइक योर टीम इज इक्वली, सो वो मैं तो आई एम अ बिलीवर कि एनर्जीज जो है ना वो ट्रांसफर होती हैं, और वो एनर्जीज चीजों को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं. उन हर सवालों के जवाब नहीं मिलते, और अल्फाज में हर चीज समझाई भी नहीं बात जा सकती. वो एक होता है कि वो मिल जाती हैं और चीजें फिर हो जाती हैं. सो आई थिंक ये इस टाइम में, जिसमें कोविड टाइम में और बहुत चीजें हैं, तो देन देयर इज अ मोर रिस्पांसिबिलिटी दैट वी फील on us, and I'm very grateful for the work that you are doing, and thank you very much for inviting me, Ji. Thank you. Until next time, Bye.